सर आपकी पगार कितनी, आप कितना कमा रहे? ही एक्चुअली टोल्ड मी 3-4 lakhs. वो कहते हैं यार म्यूचुअल फंड वाले तो सब बेवकूफ़ हैं. अगर ये इसको कोई काबू कर पाए ना तो वॉरेन बुफे का एटलीस्ट छोटा भाई तो बन गया. अब मैं अपने पापा से बात करूं तो वो जेनजीज के खर्चा देख के डर जाते हैं. जो आदमी ज़्यादा खर्च करता ना वो एक्चुअली फ्यूल बन जाता है आपकी मेहनत का. विदाउट अ डेस्टिनेशन देयर इज नो पॉइंट बिगिनिंग. सो मिस्टेक्स आर ओके टू डू. इट इज़ अबाउट इफ यू डोंट हैव अ गोल यू विल फाइंड द मिस्टेक व्हेन इट्स टू लेट. मेरे पापा बहुत लड़ाई की मेरे से, तू वेल्थ मैनेजर मत बन. प्रोक्रेस्टिनेटिंग इज अ बीमारी टिल यू स्टार्ट. Ever wondered what it takes to truly master the world of investing? Or how someone goes from teaching physics in Mysore to shaping financial futures of topmost Indians? In today's episode of House of Equentis, we are unlocking the secrets with none other than Feroz Aziz. Get ready for some real talk, insightful stories, some stories that would make you go really, really, really crazy, and even a few laughs. So Feroz, let's first try and maybe congratulate you. You've managed to stay away off the podcast radar for quite some time. What changed? Why Equentis now? Was it us? Be honest. I think I wanted to start with the best, and that's where you are my strongest reasons to be on the podcast. Of course, I have been out of the podcast, like you rightly observed, but I think now the start is wonderful being with you. Thank you, and that's quite flattering. Coming to your career, you started your career balancing teaching with engineering. You were teaching physics. At what point did you realize that the world of finance was calling your name? And what sparked that transition? What sparked that transition is quest for growth. If you want to grow, then you're going to look around, right? People say opportunities are to be grabbed. But if somebody is watching, if your Bluetooth is not on, you will not catch the opportunity. When I was teaching, actually I was a very bad student initially. It would be surprising that I would pass for my parents and my classmates. But because of financial crisis, I was pushed into teaching mathematics because there was another guy who was absent, and the trustee of that college was my friend's dad. He said, "Okay, can you fill in for 15 days?" That's where, and I needed some money. So once I started teaching, I realized that I became a better student because my fundamentals got better for mathematics, physics, and then my engineering, I became a good student in engineering. Then I realized that this could absorb me, and I started teaching 1,000, 2,000 kids in evening colleges and stuff when I was doing my engineering. So teaching helped my education, and my education helped my teaching. So all this happened, but then there was one great teacher in Mysore. So I went and asked him, "Sir, आपकी पगार कितनी, आप कितना कमा लेते?" He actually told me 3-4 lakhs. And by then in 2004, I had reached 1.5-2 lakhs of salary from zero per month to 2 lakhs. Then I realized that if I become a Sri Chand, his name is no more unfortunately, one of the sweetest and the best teachers in Mysore, I would still get 100% growth, and I have at least 40 years of my life 100% growth, and that was my age gap between Sri Chand and me. I said that will not quench my thirst for growth. And growth is what pushed me towards doing something else, and finance was a natural inclination. Wow, that's quite inspiring. So from earning 2 lakhs maybe 20 years back per month, you took a hard call to shift to a job which was maybe paying you much lesser. Did you think it was a risk? Did you think it was something that you were meant for? It was a big risk, definitely, but it was a calibrated risk. I don't define risk as bad circumstances. Risk is anything which you don't expect. Now let's assume if I make an investment portfolio, hypothetically, with 10 companies. मैंने सोच ही लिया है 2 डूबेंगी, 8 अच्छा करेंगे. अगर वो 2 डूब जाए ना, उसको मैं रिस्क नहीं कहता. तीसरी डूब जाए ना, वो एक जो है वो उसको रिस्क कहता. Risk is nothing but the differential from expectation. So from that definition standpoint, I don't think there was a risk.
बिकॉज आई ऑलरेडी हैड टेकन अ 2 लाख रुपी सैलरी पर मंथ डाउन टू 9,300. अब इससे रिस्क क्या होगा? बिकॉज ये एक्सपेक्टेड ही था कि 9,300 ही आएंगे महीने के एंड में. तो अ कपल ऑफ माई फ्रेंड्स, आई हैड चेक्ड विद देम, विल यू बेल मी आउट for 1-2 years if I need 3-4 lakh का उधार, 5 लाख का उधार to live in Bangalore. So leaving a city, living in Bangalore with a 9,300, so was a risk which I already prepared for because मुझे पता ही था कमी हो रही है. But a couple of my very good classmates said that तुझे 3-4 लाख का उधार चाहिए होगा तो हमारी पगार तो इतनी कम नहीं है, तो we will chip in. उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, but that's why I'd say that was a. But one thing which I have to say, people, my parents almost disowned me for this decision because. If I was foodless 2 years back, from there if I'd come to 2 lakhs per month, going back to 9,300 was not palatable to anyone's mind except these two friends, Vinod and Mamta, who said we'll support you. Wow, that's quite inspiring. So from earning 2 lakhs and before that maybe there was a struggle in maybe putting food on the table and then going back to 9,000, I think it takes a lot of vision, a lot of conviction and glory. So kudos to that. While leading the wealth division at Anand Rathi, what's been the most surprising and common experience with managing people's money? So surprising first and then the common one. See, surprising is, initially it was very surprising how people would come to conclusions without doing the math. That was very surprising to me initially. अब एक भाई साहब से मिला, वो कहते हैं यार म्यूचुअल फंड वाले तो सब बेवकूफ़ हैं. Okay, and I'm using a more sharp, not such a sharper word. He used very, very strong words. He said, yes, तो सब बेवकूफ़ हैं. मैंने कहा सर 142 लोग फंड मैनेजर हैं इक्विटी के, सब बेवकूफ़ हैं. क्या कोई IIM से पढ़ा है, कोई ठाकुर कॉलेज से पढ़ा है, सब बेवकूफ़ हैं. हाँ, सब बेवकूफ़ हैं. मैंने कहा क्यों? उनसे आपसे पूछा. वो पेन मैन्युफैक्चर करते हैं, बड़ी पोर्टफोलियो, 800 करोड़ की पोर्टफोलियो थी तब, खाली डायरेक्ट इक्विटी में. तो सब बेवकूफ़ हैं. मैं इसीलिए नहीं देता उनको पैसे क्योंकि वो अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाते. तो मैंने कहा बेशक सर, आप अपने खुद के पैसे मैनेज करते हैं तो आप 143rd फंड मैनेजर हो गए, ओनर भी आप ही हो, मैनेजर भी आप ही हो, तो आपने अपनी बेंचमार्क से कितनी अल्फा की वो कैलकुलेट किया? नहीं किया. तो अगर आपने 142 लोग को इस आधार पे छोड़ा कि ये बीट नहीं करते और खुद ही प्रोफेशनल और ओनर सेम बन गए, तो क्या ये फर्ज नहीं बनता आपका, 17 साल से कर रहे हो, चेक कर लूँ मैं निफ्टी को बीट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल. वो करे बगैर कंक्लूजन पे आना, ये पहले मुझे सरप्राइज लगता था. फिर इतनी पॉपुलर थी ये, कोई भी कुछ भी कंक्लूजन मैथ ही नहीं करता, एक्सेल शीट कोई खोलता ही नहीं, आंकड़े डालता ही नहीं और कह देता कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ. दैट्स द बिगेस्ट थिंग व्हिच वाज सरप्राइज. एंड व्हाट्स द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज बैड मेमोरी. द सेम गाय, okay, who is governed by a certain memory, he forgets that memory in 1 year. For example, एक भाई साहब थे, उनको मैंने कहा सर थोड़ा तो डेट रखें पोर्टफोलियो में, तो भड़क गए लास्ट ईयर कि यार मैं डेट क्यों रखूँगा, 45 तेरे खुद के म्यूचुअल फंड के बास्केट ने 47% की रिटर्न दी है. तो मैंने कहा सर 47 दी है इसीलिए तो इतना बढ़ गया, थोड़ा सा इक्विटी बेचें, डेट खरीदें. उन्होंने कहा बेशक, कभी नहीं करूँगा मैं. फिर मैंने उनको 2 साल पहले की जूम रिकॉर्डिंग दिखाई. एग्जैक्टली ऑपोजिट कह रहे थे. जब इक्विटी फंड की रिटर्न -2 आई थी तो बोलते मर जाऊंगा, 1 पैसा नहीं डालूंगा इक्विटी में. सो ये जो रीसेंसी बायस है, वी आर गवर्न्ड बाय व्हाट हैपेंड इन द रीसेंट 6 months. अगर ये इसको कोई काबू कर पाए ना तो वॉरेन बुफे का एटलीस्ट छोटा भाई तो बन जाए. Wow, that's quite insightful and I think quite insightful in a way that I see that how a teaching mind now comes into picture. When you said कि किसी ने Excel शायद खोली नहीं है, किसी ने वो मैथ्स किया नहीं है, लेकिन मैथ्स करे बिना हम कंक्लूजन कर लेते हैं. डू यू थिंक दैट, आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड दैट all managers should actually be teachers at some point in time? Yes. See, anybody who has the job of guiding people should be a teacher first. Why? Because when you're guiding somebody, it's not the listener's responsibility that he understands your point. आपको अपनी शब्दावली को इतना सरल तरीके से समझाना है कि वो सामने वाले को समझ में आए. लोग कहते हैं भाई मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं बोलूँगा ऐसी शब्दावली में, उसको समझने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट जब टीचर और स्टूडेंट की इक्वेशन होती है तो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है, क्योंकि उसको पगार मिलती है बोलने की और उनकी एग्जाम भी होती है बच्चों की. सो टीचर होने से एक आप सबकॉन्शियसली समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेते हो, ना कि समझने वाले पे, लिसनर पे नहीं होता. अब जहाँ भी वेल्थ मैनेजर हैं हमारे पास 382
वेल्थ मैनेजर हैं जिनका काम है समझाना। देखिए अब जैसे प्रशांत जैन साहब हैं, वो तो पैसे कमरों में बैठ के मैनेज कर रहे हैं, उनको किसी को समझाना नहीं है, आउटपुट देना है। वो भले ही समझाने की क्षमता कम हो उनकी, कोई बात नहीं, आंकड़े बोलेंगे, बट जो मेरे जो 382 वेल्थ मैनेजर हैं उनका तो क्लाइंट से एक चीज़ समझा के करवाने का काम है। उनको तो मैं गेस्ट लेक्चर बना रहा हूँ दूसरी कॉलेजों में, ताकि वो जब सिखाने जाएंगे तब उन पे जो प्रेशर होगा कि ये बच्चे हैं, तो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज बिकम्स अनकॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए आनंद राठी वेल्थ के जो हमारे सीईओ साहब हैं, मैं जॉइंट सीईओ हूँ, राकेश रावल मेरे गुरु हैं 13-14 साल से, उन्होंने कंपनी के नाम के टैगलाइन में अनकॉम्प्लिकेटेड लिख दिया कि हम सब ये दबदबे में हो कि अनकॉम्प्लिकेट करना मेरा फर्ज है। सो आई थिंक टू कम बैक टू योर क्वेश्चन, वेल्थ मैनेजर इफ ही कैन डू टीचिंग पार्ट टाइम, he will be able to convince people in the right direction of finance. Lovely. Okay, Feroz, I think we've heard a lot about you being a very, very grounded person. We just want to understand what's that one hobby or passion outside of office, outside of money, that keeps you grounded, that keeps you away from the Excel sheets and the market trends. I think मेरे हिसाब से grounded इज़ अ रिलेटिव टर्म। जिस इंसान ने बहुत गरीबी देखी होती है, बहुत अमीरी पहले देखी होती है, तो ऑटोमेटिकली उसको पता लग जाता है कि उसके पूरे दोस्त छाट चुके होते हैं, कि ये पूरा स्ट्रेस टेस्ट हो चुका होता है। तो आपके साथ जो जुड़े हुए होते हैं ना, एक्चुअली आपके सच्चे दोस्त ही होते हैं। तो एक्चुअली जब मैं अपने दोस्त गिन रहा था, तो ज़्यादातर मेरे दोस्त बचपन के ही हैं। उसके बाद मैं दोस्त बना नहीं पाया इतने, बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त थे, फिनेंशियल इतनी टर्मोइल हो गई कि you've got a group of very good friends and modesty becomes an outcome of whom you are surrounded by. अब मैं एक शादी में गया था रिसेंटली, बहुत बड़ी शादी थी, तो एक ग्रुप ऑफ 10 लोग बैठे थे। तो शादी में जब गया था तो दुल्हन की डैड ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, ये मेरे सब दोस्त हैं। सबने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मैंने भी इंट्रोड्यूस किया, तो समझ में आया कि पूरे लोगों की जो स्टेटस थी ना, ऑलमोस्ट सिमिलर थी। सब बिजनेसमैन थे, कोई दुबई का बिजनेसमैन था, बट कोई एक गरीब दोस्त नहीं था उसमें। अब मेरा एक दोस्त है जो हैंडीक्राफ्ट दुकान में सेल्समैन है आज भी। मेरा दूसरा दोस्त है, मेरी बीवी का कजिन है, बिलियनर है, राइट, हार्डकोर, 1000 करोड़ का मेरा सबसे बड़ा क्लाइंट भी हो सकता है। तो ये जो डिफरेंशियल स्ट्रैटा ऑफ फ्रेंडशिप्स है ना, दैट हेल्प्स यू ग्राउंड। बट जनरली जब जिंदगी बीतती है तो आप उन्हीं से दोस्ती करते हो जो आप आड़ोस पड़ोस में रहते हैं, सेम बिल्डिंग में रहते हैं। So if you want to be grounded in life, you will have to have very differential financial strata of friends. Right? आप सराउंड करके देखें, मैं अभी HNI से मिलता हूँ, उनके दोस्त सब एक ही किस्म के हैं। अगर 500 करोड़ का पार्टी है तो उसके दोस्त वैसे के वैसे हैं, कोई 2 करोड़ का क्लाइंट नहीं मिलेगा उनके टेबल पे। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई हैव बीन एबल टू नॉट बी modest or immodest the way I am. I didn't have to change it because my friends are very diverse in financial status. That's some brilliant insight. Feroz, just shifting gears, you mentioned that how some of your friends are really still from your childhood. One of your friend maybe is not as monetarily placed as you are. But do you think the Gen Z also thinks like you? Because Gen Z spends heavily on lifestyles, कॉस्टली फोन्स, कॉस्टली कार्स। अब जब उनका इन्फ्लुएंस इकोनॉमी पे बढ़ रहा है, तो क्या उनके लिए, उनके फाइनेंशियल फ्यूचर को अगर हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना है, डू यू हैव एनी सजेशंस फॉर देम सो दैट देयर रिस्क टेकिंग एबिलिटी डज नॉट गेट्स कॉम्प्रोमाइज, नंबर वन, बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग मे बी हेविली देन यू एंड मी वुड डू मे बी 10 years back. What would be a strategy for them as a suggestion from you, so that they can have a balanced approach towards consumption and towards investments? मेरे हिसाब से जेनजी से, अब मैं अपने पापा से बात करूं तो वो जेनजीज के खर्चा देख के डर जाते हैं। तो मैं उनको समझा रहा था, डैड आपका दौर अलग था, राइट, आप इनको इतना बेवकूफ़ ना समझें, क्योंकि आपने एक तरीके से ज़िंदगी जी है, वही उस उम्र में आके आपको लगता है कि यही एक तरीका सही वाला है। हमारी अडेप्टेबिलिटी टू अनदर पर्सपेक्टिव कम होती है। मेरे हिसाब से एक स्टडी मैंने की, हमारे पास भी 1200 कोलीग्स हैं, जो आदमी ज़्यादा खर्च करता ना, वो एक्चुअली फ्यूल बन जाता है आपकी मेहनत का काफ़ी बार। अगर बाप के पैसे नहीं हो, माँ के पैसे नहीं हो ना, किसी को आईफोन खरीदना है ना, वो गरीब नहीं बनने वाला, वो एक्चुअली और अमीर बनेगा।
क्योंकि आप सिर्फ खर्चा देख रहे हैं। चाहतों से मेहनत बनती है, सेविंग से नहीं बनती। जैसे मैं आपको अपना उदाहरण दूं कि मेरी एस्पिरेशन थी कि यार मैं जब बाइक नहीं खरीद सकता था, मैं 15-15 किलोमीटर, मेरी बहन की लड़की हुई थी, पहली लड़की, तो मेरे पास बस के पैसे नहीं थे, मुझे 12 किलोमीटर चल के जाना पड़ता हॉस्पिटल। तो 12 किलोमीटर जब मैं चल रहा था तो एक मजबूरी सी थी कि बस नहीं चढ़ पा रहा हूँ मैं। तो मैंने उस दिन सोचा था कि देश में जो भी गाड़ियाँ ना सब खरीदूंगा। राइट? मेरा गैराज देख के सामने वाला घबरा जाना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं कि यार एक शौक मैं पूरा करूंगा, कि कम्यूट के लिए नहीं, मैं खर्चे के लिए खरीदूंगा। तो मैंने खर्च किया। क्या मैं गरीब मर रहा हूँ आज तो आई होप कल नहीं मर रहा हूँ, बट so my expenditure didn't define my financial status, but that expenditure gave me the fuel to work. साला मंडे कब होगा, ये जुनून आता है। अगर आपकी चाहते कम है, आपके डिपेंडेंट्स कम है, तो आप ये ना समझिए कि आपकी सेविंग्स होगी और आप अमीर मरने वाले हैं। नहीं, खर्चों से चाहते बनती। अब आपको वो देखना है कि चादर क्या है, उसकी डेफिनेशन एक्सेल शीट पे है, और वो एक्सेल शीट ना करें जेंजी, यही मेरी विनती है, खर्चा करो। राइट? कोई कह रहा था भाई 10,000 के शूज़ खरीद रहे हो, 10,000 के शूज़ नहीं खरीदोगे तो 15 साल बाद ये 10,000 रुपये 4 लाख रुपए होंगे। भाई ऐसे आंकड़े करोगे तो खाना बंद कर दो। इंटरेस्टिंग। फिरोज, डू यू बिलीव एक क्लियर गोल के बिना देर इज नो डायरेक्शन? बिकॉज आपने जो अभी 5 मिनट पहले बोला कि खर्चा करने से मत डरो, जुनून रखो, चाहते रखो। हाँ, उन चाहतों को पूरा करने के लिए फिर वो मंडे का वेट भी करना ज़रूरी है। बट डू यू थिंक दैट देर इज़ a very strong correlation between planning and having a goal? और अगर आप ये किसी एक 20 साल के बच्चे को आज बताना चाहें कि अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी अभी स्टार्ट करनी है, तो उसे कैसे समझाएंगे? जैसे आपने कहा यार, जिंदगी के कोई भी पहलू में अगर लक्ष्य नहीं है तो ज़रूर आप चल पाएंगे, पर आप ड्रिफ्ट करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे भी बढ़ भी जाएंगे, बट चांस से, डिज़ाइन से नहीं। तो लक्ष्य तो हर पहलू में इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी बीवी से लड़ता हूं तो भी एक लक्ष्य लेके चलता हूं कि भाई इससे जीतना है इस बार। तो उसके पहले 3 लड़ाइयां हार चुका होता हूं ताकि ये जीतने का मौका मिले। राइट? अब मैं 4 जीतूंगा तो डिवोर्स हो जाएगा। राइट? तो मैं देखूंगा ये छोटी बैटल है, इसको हारना चाहता हूं, लेट्स नॉट फाइट इट। सो आई नो दैट मेरा लक्ष्य है कि बड़ा ये वाला हाई आइटम है, मंथ एंड में बात करेंगे, तो उसके पहले 3 हार रहा हूं मैं, तो लक्ष्य है मेरे पास। लोगों को लगेगा ये बैटल हार रहा कितना बेवकूफ है, आर्ग्यू भी नहीं कर पा रहा अपनी स्पाउस के साथ। That's not. Always begin with the end in the mind. Okay? अब मैं यहाँ से पुणे जाने की सोच रहा था, जैसे आपको कह रहा था पॉडकास्ट के पहले। अगर मैं गूगल मैप को बोलूंगा, एड्रेस नहीं डालूंगा, बोला मेरे को ले चल, तो चाटा नहीं मार देगा गूगल के हाथ होते तो। साले ढाल तो सही डेस्टिनेशन, फिर मैं तुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताऊं। सो आई थिंक विदाउट अ डेस्टिनेशन देयर इज नो पॉइंट बिगिनिंग। सो I think that's brilliant, that if you do not have a goal or you're not looking at the end result, of course your dream will always be a dream, right? That's essentially what we are saying. Firoz, continuing on this, having a goal or lakshya and then planning for it, have you come across, I'll not say horror stories, but some stories with a lot of learnings from the clients that you manage or from your existing customers or high network customers, जहाँ से आपको कुछ learning मिली कि देखो इन्होंने कैसे या तो अपना लक्ष्य सेट किया या नहीं किया? करेक्ट, बहुत सारे लोग मिले। एक कपल था, राइट? उन्होंने अपना बिजनेस बेचा 150-200 करोड़ में थे, बेचा और इन्वेस्टिंग करते गए 15 साल तक, और हर किस्म के प्रोडक्ट खरीदे। कोई वेल्थ मैनेजर नहीं छोड़ा, कोई प्रोडक्ट नहीं छोड़ा, लक्ष्य नहीं था। अगर वो लक्ष्य डालते कि भाई 200 करोड़ को 1000 करोड़ पे ले जाना है, 10 साल में ले जाना है, तो 15% की रिटर्न की उम्मीद होती है पोस्ट टैक्स। तो ये लक्ष्य नहीं था उनका, एक ही काम था, मकसद था कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट खरीदूंगा। तो मैं उनसे मिला, वो हमारे पास भी थोड़े से पैसे दे के रखे थे, तो फिर मैंने उनका हिसाब किया, पूरे अच्छे किस्म पूरे बुरे प्रोडक्ट सबका हिसाब किया, तो पता लगा कि उनकी रिटर्न आई है 6.5% की। तो इतनी मेहनत करके इन्होंने अगर लक्ष्य नहीं रखा, उनको सिर्फ 3 प्रोडक्टों की जरूरत थी, बट वो ट्रांजैक्शनली कर रहे थे, ना कि लक्ष्य कर रहे थे। अगर वो लक्ष्य रखते, वैसे ही समय में दूसरे एक सेम स्टेटस के एक दूसरे क्लाइंट थे, उनका एक लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य रखते ही 10 साल का लक्ष्य रखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 साल भूल जाओ,
10 साल का लक्ष्य रखते ही एक्सेल शीट की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हर 31 मार्च का एक टारगेट दे देगा वो। मुझे 60 की उम्र में यहाँ पहुँचना है, तो आज 100 के 60 की उम्र में नहीं उठना है। एक्सेल शीट को बताते बोलते कि अगले साल कहाँ पहुँचना है, 2 साल के बाद कहाँ पहुँचना है, पूरा का आपको मिल जाएगा। जब वो मिल जाए तो आप जब 31 मार्च 2026 पे पहुँचे तो आपके पास एक टारगेट होगा, एक एक्चुअल होगा। टारगेट अगर ऊपर है और एक्चुअल नीचे है तो फिर आप सोचेंगे यार क्या हो गया, रणनीति चल नहीं रही, 1 साल और देखेंगे। इट विल नॉट बी टू लेट। सो ऑलवेज हैव अ गोल इन माइंड विच इज़ अ न्यूमेरिकल गोल। मैं इतना कमाऊंगा, इतना खर्च करूंगा, इतना फिलैंथ्रोपी करूंगा, इतना उधार दूंगा, इतने उधार वसूल करूंगा, यहाँ पहुंचूंगा 31 मार्च 2050 को। मैं नहीं कह रहा हूँ 50 में उठना, 25 साल बाद। वो डालते ही एक जेनजी को हर साल का एक टारगेट आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा बिफोर इट इज़ टू लेट। इसमें मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं कहीं जा रहा था तो ड्राइवर साहब ने एक गलत टर्न ले लिया। गूगल मैप में देखता रहता हूँ, बट उन्होंने गलत टर्न ले लिया, फ़ोन पे था, कल ही की बात है। तो फिर मैंने वापस फ़ोन ख़त्म हुआ, गूगल मैप देखा, ये तो गलत निकल आए। तो मैंने कहा साहब, रफ़ी साहब कहाँ आगे निकल गए हो, यू टर्न करो। तो उनको यू टर्न मिल गया आधे पौन घंटे किलोमीटर में। तो हमें ये टोटल 5 मिनट का खर्चा लगा। ऊपर गए, अनवांटेड 5 मिनट्स डिले हुआ। यही की यही मिस्टेक अगर मैं 20 किलोमीटर बाद पता लगती तो मुझे एटलीस्ट 1 घंटे का निष्कर्ष होता। तो मिस्टेक वही थी, इम्पैक्ट अलग था। कितना जल्दी करेक्ट करते हो उस पर पता लगता है। कैंसर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंसर अगर 3rd स्टेज में पता लगे तो प्रॉब्लम। सो मिस्टेक्स आर ओके टू डू। इट इज अबाउट इफ यू डोंट हैव अ गोल यू विल फाइंड द मिस्टेक व्हेन इट्स टू लेट। Lovely. Feroz, we know that, and before we started this podcast, you were telling me, that you had a really, really volatile, I would say, past in terms of monetarily being that strong or not that strong. आपने जो planning की बात की that you should have a goal. Did you also have that goal when you actually were given a legacy of a loan, and then, like you were telling me, you took a loan to become a farmer, then a physics teacher, from a physics teacher earning 2 lakhs to going to ABN at 9,000 rupees salary, and now maybe one of the well-to-do, I would say, professional in Indian circuit. Did you also plan, because a lot of our young viewers would want to know that how do you climb that ladder from maybe earning 10,000 rupees to 25,000 rupees to ultimately qualifying as one of your Anand Rathi customers as an HNI? What would you suggest? A lot of our viewers want to know that. मेरे हिसाब से टारगेट तो मैंने रखा। ओके, आप अगर मुझसे मांगते 2013 तक, 2004 से हर सैटरडे को मेरी नेटवर्क क्या थी वो अपडेटेड है एक एक्सेल शीट में। Wow. ओके, तो कुछ भी अलग होता था कि ये आए ये गए तो वो मैं अपडेट करता था। हाँ, तो एक पाथ कार्व आउट हुआ। जैसे वो एक एयरक्राफ्ट है ना, MH370, उसकी पाथ कार्व्ड आउट आज भी है कि कहाँ गई थी। अगर एक एयरक्राफ्ट की ज़िंदगी, मतलब एक फ्लाइंग का कार्व्ड आउट रहता है इतने सदियों तक, एक इंसान की फाइनेंशियल लाइफ को कार्व आउट करके रखने में क्या जाता है, तो उससे बहुत लर्निंग आती है। तो मैंने जब टारगेट रखे तो वो अगर बढ़ा नहीं तो भी पता लगता है, बढ़ गया तो भी पता लगता है। सो इट जस्ट हेल्प्स यू कार्व आउट। माई डैड ऑलवेज टोल्ड मी दैट देख, विपताएँ तो आएंगी, और माई डैड सॉ सो मेनी विपताएँ, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग। यू कांट आस्क फॉर मोर एडवेंचरस लाइफ। सो ही सेड, भाई विपता आएंगी, मैं क्या करूं के बदली मैं क्या क्या करूं सोच, ना कि मैं क्या करूं यार मेरे साथ ये हो गया। मैं क्या क्या करूं, जस्ट वन एक्स्ट्रा क्या विल मेक यू पॉजिटिव एंड से गेट अप एंड से व्हाट एल्स कैन आई डू। दैट रियली हेल्प मी हैविंग ऑल द ऑप्शंस। मैं क्या क्या करूं ये प्रश्न डालते ही 4 ऑप्शन लिखने पड़ते हैं आपको। दैट वाज वन ऑफ माई की लर्निंग्स ऑफ माई डैड्स पॉजिटिविटी विच रब्ड ऑफ ऑन मी। Adversity still come, maybe of a different nature, but you are able to navigate it if you stop sympathizing with yourself. मैं क्या करूँ यार, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मेरे नसीब ही खराब, मैं क्या क्या करूँ। बस वो एक्स्ट्रा क्या ना आपका पर्सपेक्टिव को चेंज करता है। That's really, really inspiring. मैं क्या करूँ to, मैं क्या क्या करूँ opens up the options. Do you think suddenly this DIY investing, do it yourself,
wherein people are taking charge of their financial journeys. Is it a risk, or is it literally overrated or maybe oversold? Do you really think that people are taking the charge of their financial journeys in their hands? Are they risking their financial futures, or are they getting more evolved as a customer? See, financial journey has different parts of the value chain. Okay. If I have to break it down, that's when you get the right clarity. See, managing your expenses, nobody else can do for you. Do it for yourself. Managing your aspirations and your salaries and your effort, can't do somebody else. Finance, managing money is not just about the last leg stock kaun se kharido, right? Mutual fund kaun se kharido. I personally think that 3-4 legs, you have to be very passionate to do it. And I think it should be basic education for you to be proficient with mathematics, because that's ingrained in all our lives. ये bottle पानी की, इसमें पैसे लगे, 4 कप पीऊँगा, 50 साल तक पीऊँगा तो कितना मेरा पानी पे खर्चा होगा, right? Yep. Number तो है ही. Life and money is intertwined. So you should at least have basic elementary knowledge of mathematics. And you should do your expenses, your incomes, your risk appetites, all that you have to do. People, for their egos, do it for yourself. मैं खुद करता हूँ. भाई, क्यों करता हूँ? 50 पैसे बचाने के लिए. आधा % साल का बचाने के लिए. पोर्टफोलियो कितना? 25,000 का. 25,000 का आधा % कितना होता है? पता नहीं. 25,000 का आधा % होता है 125 रुपये. 125 रुपये बचाने के लिए, राइट? तू कह रहा है कि तू खुद करेगा या ईगो के लिए कर रहा है तू? बिल्कुल. ताकि दोस्तों को बता पाऊं मैं खुद करता हूं, राइट? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की इज्जत कॉफी टेबल कॉन्वर्सेशन में बिल्कुल नहीं होगी. क्रिप्टो वाले की इतनी इज्जत होगी, क्योंकि वो, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल आर मिक्सिंग इज मनी विद ईगो और देयर नीड टू बी इंटेलेक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड. Bifurcate it. Right? Put 5% for your intellectual stimulation and your flaunting capability. If there are 5 people of an opposite gender on a table of 10, do that. Nobody's saying no. Right? You're a Gen Z. But don't mix your money with that. So objectives have to be clear. That's where again your question, तुम्हारे objective क्या है? मेरा objective flaunt करना है तो बिल्कुल do it yourself. वरना आपकी मदद ले लो, किसी की भी मदद ले लो. भाई जो कर रहा है इतने सालों से, क्या पैसे बचा रहे हो? Let the people who know it maybe drive it for you. Correct. I know I can drive, but my driver drives me. Yeah, fair. Okay, shifting gears to the international circuit, Feroz, quickly. The recent unease in geopolitics, where 2 top economies in the world, US and Europe, are against each other, and US surprisingly is in favor of Russia now for the first time. Amidst all of this, what do you think of India's positioning? Should we be worried about the stock market turmoil, or is it looking very good to you? Again, I'll get a little philosophical before I get to that question. हम इंसानों की, ये आपने पूछा ना, आश्चर्यचकित क्या लगता है? इंसान को सब चाहिए लाइफ में. शॉर्ट टर्म भी चाहिए, लॉन्ग टर्म भी चाहिए. मैंने पेट काटा, 2 लाख से 10,000 पे आया, तभी लॉन्ग टर्म बेटर हुआ. मुझे 2 लाख से 2 लाख की पगार भी चाहिए, बैंगलोर भी मूव करूं, मुझे रहने का घर भी दे सामने वाला, और फिर मुझे लॉन्ग टर्म भी अमीर बनना है. नहीं होता है. दोनों को, सबको दोनों हाथ घी में चाहिए, सर कढ़ाई में चाहिए. ये why am I saying this in this context of this question? हम जो प्रार्थना कर रहे थे कि भाई इंडिया चाइना को compete कर सके मैन्युफैक्चरिंग में, हमेशा ये प्रार्थना कर रहे थे. तो इससे अच्छा मौका कैसे मिल सकता है आपको कि 2 जायंट भिड़ रहे हैं, राइट? यूएस की पर कैपिटा इनकम है $80,000, आपकी है $2,500, चाइना की है $13,000. अगर इंडिया ने, मतलब यूएस ने चाइना से नहीं मैन्युफैक्चर कराना, तो कहाँ से मैन्युफैक्चर कराएगा? इंडिया एटलीस्ट एक केदार में तो होगा. अब क्या हम उसको कैपिटलाइज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो पता नहीं, बट एटलीस्ट आपको स्टेज तो मिला है नाचने के लिए. आप इंप्रेस करोगे ऑडियंस को कि नहीं, पता नहीं, बिल्कुल, बट स्टेज ही नहीं मिल रहा था. अब उसमें आपको ये भी चाहिए कि भाई स्टॉक मार्केट इस दौर में 5% ऊपर भी जाए और 10% भी ना गिरे, राइट? You have to be fair with God. We are not fair with humans, so that's, I know, but you're not even fair with God that you expect something reasonable. So I personally think this is the best long-term rejig of the global trade which India could have used. Will it use? I think 80% probability. Will it use it to the maximum extent? Maybe only 50% probability. But a serious probability exists that we will be able to, after this shake-up, when the dust settles, we will be better in the global order than we started from. Great. So there's a lot of talk around Trump, tariff, and the tamasha that comes with it. Do you think this could be another global reset moment?
like Russia, Ukraine war or COVID, or do you think that it is, just a passing phase? देखिए, हर न्यूज़ का इम्पैक्ट न्यूज़ पे नहीं निर्भर करता है, वो कब पहुंची आपके पास उस पर ज़्यादा निर्भर करता है। ये स्टडी मैंने की। देखिए, सत्यम जो है ना, 2010 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2009 या 10 में, वो सेंसेक्स की एक कंपनी, जो कि जेनजी सी बात हो रही है, निफ्टी की कंपनी, सेंसेक्स की कंपनी, ये ऐसी ट्रिवियल चीज़ बोले कि हमारी एफडी ना फर्जी थी। और उस दिन पता है सेंसेक्स गिरा था 1%, क्योंकि ऑलरेडी 2008 की जो गिरावट के बाद सेंसेक्स 17-18 हज़ार से 10,000 गिर गया था। अगर वो खबर 18,000 की लेवल पे सेंसेक्स की आती तो निफ्टी का इंपैक्ट अलग होता, मतलब सेंसेक्स का इंपैक्ट अलग होता। वो एक खबर से 30% टूट सकती थी मार्केट 4 दिनों में। बट क्योंकि गिरावट के बाद वो खबर आई, उस दिन सिर्फ निफ्टी गिरी 1.5%। सो इट इज नॉट अबाउट द न्यूज, इट इज अबाउट व्हेन डिड द न्यूज कम। नाउ व्हाई आर वी नॉट इंपैक्टेड? इंडिया पाकिस्तान की वॉर की टेंशन है, मार्केट गिर नहीं रही, सब आश्चर्यचकित। मैं क्या आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो साहब? ट्रंप आ गए, बोले टैरिफ हो रही है, मार्केट गिर नहीं रही, क्योंकि हम 4 लाख करोड़ फॉरेनर को वापस कर चुके हैं। इस बहाने कि हम बड़े महंगे हैं, 4 लाख करोड़ देने के बाद ये खबर आए, तो फिर निकालेगा कौन? निकाल के जा चुके, कोई और बहाने से निकाल के जा चुके। इसीलिए नैस्डैक एक दिन में 14% गिर गया, मैं 3% गिर रहा हूं उसी दिन। बिकॉज इट इज नॉट अबाउट द न्यूज, द पावर ऑफ द न्यूज डिपेंड्स ऑन व्हेन इट रीच्ड द कैपिटल मार्केट। इफ पीपल थिंक दैट इट्स एज सिंपल दैट ये न्यूज आप 26,200 की निफ्टी की लेवल सितंबर में लास्ट देते तो 15% गिरती 3 दिनों में, क्योंकि हम फ्रॉथ पे बैठे थे। कॉफ़ी होती है, ऊपर झाग होता है, झाग पी गए हो तो कॉफ़ी थोड़ी स्टेबल चीज़ है। दैट्स इंटरेस्टिंग। सो इस न्यूज़ का जितना असर मार्केट में नेगेटिविटी लाने के लिए पड़ा, आई थिंक उतना ही पॉजिटिव असर गोल्ड के रेट पे दिखा। गोल्ड हैज़ क्रॉस्ड ऑल टाइम हाई ऑफ अपवर्ड्स ऑफ 1 लाख रुपीज़ नाउ। तो आपको लगता है सोने में अभी चमक बाकी है, या व्हाट इज़ योर टेक? देखिए, गोल्ड का एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण रोल है। पहले मैं, अगर पिक्चर बन रही है तो भाई ये तुम सपोर्टिंग एक्टर बन रहे हो, विलन बन रहे हो, हीरो बन रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम हर इंस्ट्रूमेंट का एक क्या रोल है उसका पिक्चर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं यार आनंद राठी गोल्ड ही नहीं खरीदवाता। भाई मेरे पास डेट ही नहीं है मेरे क्लाइंट की। मैं उन क्लाइंटों को लेता हूँ जो इस जन्म में अपने पैसे खर्च नहीं कर सकते, तो उसमें डेट का क्या काम? तो डेट थोड़े से हैं, खाली खर्चे के पैसे अगर थोड़े बहुत हों तो डेट कैन बी वेरी इजिली रिप्लेस्ड बाई गोल्ड। Gold is a great inflation protector, not to everybody. To my client, he's made 16% for the last 10 years. Gold has not done, it has done 15% from 2020. 15% की ग्रोथ आई है अब लाख पे पहुंचने के बाद। और मेरा क्लाइंट 11 साल से 16% बना चुका है, तो उसको गोल्ड की प्राइस देख के ना होने का दुख होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बट वही साहब जो एफडीओ में पड़े हुए हैं 80% पैसे लेके और उनकी टोटल रिटर्न 6 है, वही 1 लाख का प्राइस देके उनको कूद के आंसू रोना चाहिए। सो गोल्ड का रोल है, इक्विटी को रिप्लेस करने का रोल नहीं है, उसको डेट को रिप्लेस करने का रोल है। बिकॉज इंडिया में दोनों से बहुत प्रेम है, गोल्ड से भी प्रेम है, एफडी से भी प्रेम। मैं कह रहा हूँ दोनों ही प्रेम है ना, इक्विटी से प्रेम कम है तो डेट से, ये प्रेम वाले आइटम से, ये वाले प्रेम वाले आइटम में तो चले जाओ। सो गोल्ड हैज अ वेरी लार्ज रोल टू प्ले। इट कैन बीट डेट सिग्निफिकेंटली ओवर द नेक्स्ट 5 years. Great. As a thumb rule, if you were to allocate percentages, if you had 100 rupees to invest, what would you recommend our viewers? What percentage to put in real estate, gold, stocks, and mutual funds? When I say stocks, it's direct equities. Correct. Can you help guide on these 4 categories? See, firstly, if you break it up, I think 65% naked equity for long-term monies. Now, I'm only speaking about long-term monies. Long-term money is 4-5 years also. I'm not speaking about long-term like 10, 15, 20 years. 4-5 years से ज़्यादा का पैसा है, अगर 70% आपका पैसा 65 से 70% equity में नहीं है, then you're missing out. अब वो equity में कितना आपको direct equity करना है, साथी पे निर्भर करता है। अगर आपके पास direct equity का साथी है तो बिल्कुल direct equity करें। म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है कि अगर आपके पास इतने पैसे आज नहीं हो और इतनी अच्छी अटेंशन नहीं मिल रही हो कोई एडवाइजर से, तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं। 65-70%, ये फर्स्ट चेक कर लें। 70% आपका पैसा नहीं हो तो आप इक्विटी में नहीं हैं, तो आप मात खाएंगे महंगाई से। दैट्स वन।
सेकंड, रियल एस्टेट इज अनदर बॉल गेम. रियल एस्टेट अगर आप यंग हो तो इतने पैसे चूस लेता है कि आपके अगले 20 साल की कमाई चूस सकता हो EMI में, राइट? तो आपको ये देखना है कि व्हाट कदार पे रियल एस्टेट बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू. कंजम्पशन बिल्कुल आप देख लें, बट रियल एस्टेट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक टू व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ यू आर इन. रियल एस्टेट इंडिया में पैसे बना रहा है. मेरे पापा बहुत लड़ाई की है मेरे से, तू वेल्थ मैनेजर मत बन, राइट? मत बन. वेल्थ मैनेजर की कोई ज़रूरत ही नहीं है. इन्वेस्टमेंट कर दो रियल एस्टेट में, सब ठीक हो जाएगा. सो रियल एस्टेट आज इंडिया में इतना पैसा इसीलिए बनाया सर, 4 चीज़ें हैं उसमें. रियल एस्टेट में उसका प्राइस रोज नहीं आता, उसको आप पार्ट्स में बेच नहीं सकते, राइट? और ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑब्सीन है. अब अगर आप रोज सब रजिस्ट्रार हैं 10,000 समझो इंडिया में, न्यूज़ चैनल्स अगर सब रजिस्ट्रार के बाहर एक संवाददाता खड़े कर दें और आपको रिपोर्ट करते जाएं कि ये बिल्डिंग का प्राइस क्या ट्रेडेड है, तो आप खुद ही घबरा जाएंगे कि यार टिकर चलता जाए कि इस बिल्डिंग का. करेक्ट. तो लोगों को जब प्राइस नहीं मिलती तो सुकून से जज्बातों के बगैर बैठे रहते हैं. अगर कोविड में आप अगर एक बेडरूम अपने घर की बेच पाते हैं तो आप 4 बार अपनी बेडरूम बेच के खरीद चुके होते हैं. इक्विटी में आप पार्ट्स में बेच सकते हो, राइट? और फिजिकल होता है तो इंसान को पेशेंस होता है, फिजिकल नहीं होता तो इम्पेशेंस होता है. सो ये 4P मॉडल है. पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो रियल एस्टेट आई वुड कीप आउट ऑफ इट and say 30-70% in equity is the biggest decision you have to take. The rest, if you want to keep in debt, bifurcate it into gold and debt in these 2 instruments. And real estate, from a consumption standpoint, I'm okay. But from an investment standpoint, you have to be very careful. What's your take on insurance as a category? Is it an investment instrument? Because a lot of people think, they buy insurance just to save tax. Would you suggest that to young people? If you have a gun on your head, you can club these 2 objectives. Okay, if the agents are roaming around with a AK-47, then definitely I will buy a investment-based insurance, because I analyzed 8,400 policies after 11 years of holding. देखिए, आंकड़े हमें आंसर देते हैं. मैं कौन होता हूँ आंसर देना? मेरी औकात ही क्या है? अगर 8,400 पॉलिसीज 11 साल होल्ड करने के बाद मेरे क्लाइंटों की रिटर्न आई है 3.03% कॉम्पाउंडेड, तो क्या ये रिटर्न का इंस्ट्रूमेंट है? और बैंकों में लोगों की नौकरी जा रही है ये ना बेचने के लिए. ये ना बेचने के लिए मैं उसको पुरस्कार देता, बट नौकरियां जा रही है. अब लोग बेचना चाहते हैं, आप हैं भाई, आपकी मर्जी, आपके कमाए हुए पैसे हैं. वो अपनी कोई सी भी फैंसी प्रेजेंटेशन ले आएगा, आपको लगता है कि मैं यूं ही बोल रहा हूँ, इसकी क्यों सुनूं, मैं प्रेजेंटेशन देखूं, तो आपकी मर्जी. बट 8,400 पॉलिसीज मैं किसी को भी आज शर्त लगा सकता हूँ, आके देख ले, क्लाइंट के नाम के अलावा बाकी पूरी डिटेल दे दूंगा मैं आपको. 3% की रिटर्न. तो कभी भी ये 2 क्लब ना करें. एक तीर से 2 निशान किताबों में अच्छा लगता है, राइट? हकीकत में फिनेंस में तो बिल्कुल ना. एक तीर से 1 निशान मार लो, बड़ी बात है. Coming to your forte, mutual funds, बहुत सारे लोग they invest via SIPs in mutual funds, or direct equity they may not know about systematic withdrawal plans, right? How important do you think is the concept of SWPs, and would you recommend that to our young investors? अगर आपकी पगार नहीं हो और कंसिस्टेंट टैक्स एफिशिएंट रिटर्न चाहिए तो SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, इज 1 divided by EMI. इट्स अ इनवर्स ऑफ EMI. बस इतना सोच रहे हैं, EMI तो आप देते रहे हैं, आपके पापा दे रहे होंगे, आपकी मम्मी दे रहे होंगे. सो SWP is the opposite, diametrically opposite philosophy of an EMI, where you give the money to a debt fund or an equity fund and you're systematically taking the money. Just like a bank pays you money and then wasuls an EMI, you are wasuling an EMI from the fund. So this makes it more tax efficient because there is a return component and risk component. Raha sawal, I think I inadvertently dodged your question on taxation of investments. Please don't fall into this trap of the old tax regime. Right? लोग बोलते हैं यार इतने सारे सेक्शन हैं, उस सेक्शन का प्रयोग करके तू 1,200 रुपए बचा लेगा. बिल्कुल कभी भी जिंदगी में याद रखना कि डोंट स्विम अगेंस्ट द टाइड. भाव के इर्द, मतलब you have to swim with the tide. You can't swim against the tide and go too far. If the government has told you in those many words, I'm scrapping this, then why would you want to save 1,200 rupees by doing so much jugglery and divert your attention? इंसान के पास वक्त इतना ही है,
उस वक्त से वो 1200 बचाएगा या 50,000 बनाएगा, वो देखना है आपको. प्लीज डोंट गो टू दिस न्यू टैक्स regime. People to sound intelligent will tell you 67 different sections which you can use. बट निर्मला मैम ने कह दिया भाई तुम्हें मैं पूरे टैक्स के काट के पैसे दे रही हूँ, इतना कम टैक्स है. इंडिया में मैं कह रहा हूँ, मैं हर साल पेरिस जाता हूँ कुछ कॉन्फ्रेंस के लिए. पता है एक इंसान की टैक्सेशन 60% तक जा सकती है पेरिस में. यहाँ आपको 15 लाख कमाने पे 8% की टैक्स है, 8% की टैक्स. और इंडिया की पर कैपिटा इनकम है 2 लाख, एवरेज कमाई है 2 लाख इंडिया की. उससे 7 गुना ज़्यादा भी इंसान कमा ले तो 8% की टैक्स है. और उसमें भी लोग जुगाड़ करा के मैं कैसे बचाऊं सोच रहे हो, और ये भी बोलते हो कि मैं नेशनलिस्ट हूं. तो निर्णय कर लो भाई, क्या हो आप, अपने आप से तो झूठ ना बोलो. So, I mean, in mutual funds, we know that Anand Rathi is one of the big names. And coming to the company that you lead as a leader, you have almost 50,000 crores assets under management. Tell us your secret sauce of making this company the stature that it has come to be. Plus, how do you lead this super passionate team of yours? This again goes back to my mom who taught me this. Okay, she would make the same dishes numerous times. Okay, she says I would only specialize in one thing. मतलब डिज़र्ट में वो कस्टर्ड ही बनाती थी. तो मैंने कहा मॉम मैं थक गया हूँ यार रोज़ कस्टर्ड खा के. बोलते थक छोड़, मैं स्पेशलाइज करती हूँ. ओके, तो हमने यही मतलब एटलीस्ट ऑफ कोर्स हियर माय बॉस हु इज द राकेश रावल हु इज बीन देयर द CEO फॉर द लास्ट 18 years. ही ऑल्सो हैज़ अ वेरी सिमिलर प्रिंसिपल. डू फ्यूअर थिंग्स बट डू इट राइट. किसी चीज़ के मास्टर बनो, और मैं सब सब्जेक्ट में मास्टरी कर लूँगा, वो यार 10th स्टैंडर्ड तक ठीक है. उसके बाद चूज़ करो किस में स्पेशलाइज करोगे, राइट. सो आई पर्सनली थिंक म्यूचुअल फंड में हमारा नाम ठीक ठाक इसीलिए है क्योंकि हम बहुत बड़े स्टार नहीं हैं. हम कम चीज़ें करते हैं बट डीप में जाके करते हैं. देखिए आप अगर आप बाली जाएँ हॉलीडे करने तो पूछेगा भाई स्नॉर्कलिंग करोगे या स्कूबा डाइविंग करोगे. स्नॉर्कलिंग में क्या है, ऊपरा ऊपरी आपने ग्लास पहना और देख रहे हो नीचे क्या है. स्कूबा डाइविंग क्या है कि अंदर जाके बेड पे बैठ के देखोगे कौन कौन मछलियाँ हैं. तो हम स्कूबा डाइविंग में विश्वास करते हैं, स्नॉर्कलिंग में नहीं. तो मैं स्नॉर्कलिंग करूंगा तो 20 प्रोडक्ट को इतना इतना जानूंगा. अगर मैं स्कूबा डाइविंग करूंगा तो जाके बेड पे बैठूंगा, सी बेड पे, और पूरी तपास करूंगा कि क्या है. सो दैट्स द प्रिंसिपल. दैट्स वाई वी हैव गॉट टू 50,000 crores. वी हैव सेवरल बिगर वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट्स इन द कंट्री, बट दे डू टू मेनी थिंग्स इन आवर बिलीफ. वी डोंट नो हाउ टू डू टू मेनी थिंग्स. इट्स गुड फॉर देम that they're doing too many things. We try to master a few things like no other. That's great. You mentioned about scuba diving and snorkeling, you know, one being at the depth, one being on the surface. Do you also link this with certain amount of risk appetite that people carry, right? Someone would carry a low risk appetite and hence would not want to go into the depth. With a higher risk appetite, maybe would want to stay on the surface. How do you suggest, अगेन स्पेशली आर यंग इन्वेस्टर्स, कि अपनी रिस्क एपेटाइट कैसे पता लगाएं? बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि मेरी रिस्क एपेटाइट है क्या, एंड दे एंड अप टेकिंग हेवायर डिसीजंस. हाँ, ये आंसर मेरी तो विनती होती है, मेरी प्रार्थना होगी हर भगवान से कि ये जनरेशन एक चीज़ एटलीस्ट समझ ले जो प्रीवियस जनरेशन समझ नहीं पाई है, कि रिस्क को अंग्रेजी में ना तोले. लो, मीडियम, हाई, ये क्या होता है यार? कभी आपने किसी को बोला है कि तेरी हाइट कितनी है? लो, हाई. नंबर होते हैं ना यार, रिस्क के भी नंबर होते हैं. फिनेंस इतना गया गुजरा सब्जेक्ट नहीं है कि रिस्क के आंकड़े नहीं है. आपने नहीं समझने, आपने करने नहीं है, तो फिनेंस इज सो मच मोर डीपर देन एनी अदर सब्जेक्ट. इंटीरियर डिजाइनिंग, मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि यार ये कमरा अच्छा बना है, आप बोल सकते हैं नहीं ठीक ठाक बना. सब्जेक्टिव है. मेरा पोर्टफोलियो बेटर या आपका पोर्टफोलियो बेटर, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में वॉरेन बुफे ने कहा कि जेनसन्स अल्फा चेक कर लो. तो आपका जेनसन्स अल्फा चेक करेंगे, हम किसी को दे देंगे ऑडिटर को, आपका 10 साल का पोर्टफोलियो आप दे दें, मैं तो ना दे दूँ, वो लास्ट में बोलेगा कौन बेहतर. तो एक ही विनती है मेरी सुनने वाले से कि अगर आपको कोई भी आगे से रिस्क हाई लो मीडियम बोले ना, भाई आंकड़ा बता, फिर आगे बात करें. रिटर्न मैं आपको बोलूँगा लो, तो मान जाएंगे आप. FD कराने जाइए बैंक में, वो बोलेगा हाई रिटर्न दे रहा हूँ, तो बोलेगा भाई आंकड़ा बता. राइट. सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, रिस्क के मेजरमेंट्स 3 हैं. एक रिस्क मेजरमेंट मैं समझा देता हूँ, बहुत सरल है, राइट. नाम बड़ा कठिन है, राइट. बीटा नाम है उसका. ओके, बीटा कहने के बदले बेटा कह लें.
तो थोड़ा हम इंटिमिडेट कम होते हैं, या अंग्रेजी शब्दों से हम डर जाते हैं. बीटा क्या है? अगर आपका बीटा से निफ्टी से बीटा आपका 0.8 है, एक्सेल शीट बता देती है 0.8 है, तो मतलब आपने 80% ही रिस्क ली, निफ्टी जीती, तो सुकून है भाई. 20% निफ्टी से भी कम रिस्क ले रहा हूं. बीटा 2 आ जाता है तो मतलब निफ्टी से दुगनी रिस्क ली. एक्सेल शीट में खोलो, स्लोप करके फॉर्मूला है, वो सेलेक्ट करो, डेट डालो, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू डालो, निफ्टी की वैल्यू डालो और डेट डालो और सेलेक्ट करो और स्लोप का बटन दबाओ तो बीटा दे देगा. बीटा अगर 1.3 आता है तो आप निफ्टी से 30% ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं. बीटा 0.5 आता है तो आप निफ्टी से आधा रिस्क ले रहे हैं. तो अब अगर आपको पहले तो देखना है कि मेरी रिस्क एपेटाइट क्या है, पहले पोर्टफोलियो जो बन चुका है उसकी तो देख लें, राइट. फिर उसको देखेंगे इन दोनों की शादी कुंडली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. ट्रू. तो लोगों के पास, मैं एक बंदे से मिला 1300 करोड़ है. मैंने कहा साहब आप बोलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिस्क कितना पता नहीं. तो आप ये घबराएं ना, अगर आपके पास लाख रुपए है और आपने बीटा मेजर नहीं किया तो आपके पास बड़ी कंपनी है, 1300 करोड़ वाले ने भी नहीं किया. तो बट ये नेक्स्ट जनरेशन, आई रियली प्रे माई सन इफ ही बिकेम अ वेल्थ मैनेजर ही डजंट मीट पीपल हु स्पीक इन हिंदी or in English when it comes to risk. No, a lot of people, and we are speaking about this next generation quite often. ये लोग अपनी छुट्टियां बहुत अच्छे से प्लान करते हैं. You know, they would go to an Airbnb, they would go on, you know, all sort of Skyscanner website to check the cheapest flight out of India. But when it comes to investment, वहाँ किसी को कोई खोज खबर नहीं है. How would you suggest someone to start this journey? To plan their investment step by step. Someone who's earning maybe 50,000 rupees or say 70,000 rupees a month. What's the 3 or 4 step approach that he or she should follow? Correct. So I'll give you a little contrary approach, okay, which I didn't, I'm contradicting myself. If you have not started investing, na, first take 5,000 rupees from your salary and do an SIP. हमने ये देखा है कि कोई चीज़ शुरू हो जाती है ना, फिर वो improve हो जाती है. Procrastinating is a bimari till you start. Right? So first is just start. It's okay. You can improve it. Right? So that's my first step. If you're not an investor. Now once you've done that, try and see what is your saving capability first. Change your equation. Save first, spend next. Rather than save what you have residual after spending. This equation की जो changes हैं, एक्स एंड वाई को स्वैप कर लो कि भाई मुझे सेव करना है इतना, अब खर्चा कितना करना है. ये अगर आप कर पाओगे, बहुत इजी है यार मुझे कहना, बट आपको करना मुश्किल होगा. ये आप, दैट्स द सेकंड स्टेप. देन यू हैव डिसाइडेड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू सेव. देन कंप्यूट वेयर इट विल टेक यू इन 5 years 10 years. दैट विल गिव यू अ किक. स्टार्ट कंप्यूटिंग इट. Okay, maybe there could be a barcode which we can. There are they just search for an SIP calculator on Google. In an Excel sheet format, .xls SIP calculator डालोगे तो आ जाएगी. फिर आप थोड़ा मेंटल स्टिमुलेशन करो कि यार मैं अगर 30,000 20 साल के लिए करूँगा तो कितने पहुँचूंगा. राइट? सो दैट विल गिव यू मोटिवेशन टू डू इट. देन फोर्थ, गेट एवरीबडी हु इज योर डिपेंडेंट टुगेदर एंड डिस्कस क्या क्या गोल होने चाहिए. इन्वॉल्वमेंट होता है तो प्रेशर आता है, प्रेशर से डिसिप्लिन आता है. अगर इफ आई एम मैरिड देन आई विल डेफिनेटली डिस्कस विद माई साउस क्या करेंगे यार, कहाँ जाएंगे हॉलीडे पे. तो दोनों ही साथ में एस्पिरेशंस होंगी तो डिसिप्लिन आएगा. सो फर्स्ट इज स्टार्ट, चेंज द इक्वेशन, चेंज योर बिहेवियर, motivate yourself and bring in discipline by bringing surroundings. Then fourth, then the fifth one is try and see what should I do with my money, what's my asset allocation, how will I be able to. So basically some planning you will have to kick off with these 3, 4, 5 steps. And then after that, get yourself an advisor if you can afford one today. If you can't afford one today, see who are the 3, 4 best fund managers, buy their funds and listen to their interviews. Understand who's managing your money. Because you don't have a wealth manager, straight fund manager. तो fund manager को सुनो तो सही, वो टीवी पे आता रहता है. अगर आपको आर श्रीनिवासन जो मेरा अच्छे दोस्त हैं, SBI के CIO हैं, उनका एक फंड है, अगर आप खरीद लेते हैं, दिनेश जो SBI कॉन्ट्रा है या फिर SBI फोकस्ड एक्विटी है, it will not change your life, but listen to Vasan every time he's there. Then you understand whether he's palatable with your mind or not. So these are some engagement tools I'm speaking about, not the recipe, because that's a wealth manager's job for you, right? I'm just trying to give you engagements which grips you.
Attention span, Gen Z is the disadvantage. 100%. Right? So if you have the disadvantage, fix that disadvantage, and then you have several advantages of flexibility of working from somewhere, intellect, exposure, communication. All those are your advantages. Resultant collateral damage of technology is attention span. 100%. So I think they were some real insights, and thank you for your time, Feroz. Yes, We'll sir. quickly move to our very interesting section now, which is a fun rapid fire segment. We'll ask you some very snackable questions, and we just want your top of the mind answers, right? The first one is easy, maybe. Direct equity, mutual fund, or gold? Mutual funds, equity. All right. Investing in Indian markets or global markets? Only what you understand, India. Okay. SIP or term plan? SIP any day. All right. Your mentor? Rakesh Rawal. Your best teacher for life? Dad. The worst financial advice you have ever heard? Okay, I've heard a lot of bad advice. I would say that invest only in direct equity. What's the secret to your fitness? Work for a Marwadi. Do you regret not pursuing a different career path? No, I don't regret. Right. One book every early investor should read? I've read only one book, and that's called Security Analysis and Portfolio Management. I'm still applying that after 20 years of reading it, so I've not got a turn to read the second one. You said the secret to your fitness is that you work for a Marwadi. Elaborate. Work hard. He inspires me because he's at the age of 78. He's the last guy to leave office. Wow. If you would have 1 crore and you have to invest, what would you do in this current market? I would invest 65% in equity mutual funds and 35% in structured products. All right. To wrap it up, what's one piece of advice you wish you would have known when you first started your career? Take one chapter at a time. Don't mix personal life, professional. First, take one chapter at a time. Brilliant. And that wraps up our conversation with the incredible Feroz Aziz. A massive thank you to Feroz for sharing his insights and experiences. We hope you found this episode as enlightening as we did. Share your thoughts in comments and don't forget to subscribe so you never miss an episode. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.